شکریہ احسن سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابیش کے انتہا اور بھی. آج خوشی کا موقع بھی ہے اور غم کا موقع بھی ہے, اسی لیے وائٹ بھی ہے اور بلیک. تو لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں, یا کچھ غم تو نہیں کہہ سکتے آپ, خوشی کے کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو بار بار نکالنے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں. تو یہ وہ پل بھی ہے, ایک لمبا ساتھ آپ تمام لوگوں کا رہا, اور اب ایک نئی منزل کی اور آپ کو جانا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ راہ کے طور پر یا رفت سفر کے طور پر ساتھ ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ سیکھنے کا ایک عمل ہے جو اساتذہ بھی کرتے ہیں اور طالب علم بھی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لحد سے محنت, پیدائش سے لے کر کے قبر تک جو ہے ہر ایک انسان جو ہے وہ سیکھنے کے عمل میں رہتا ہے, طالب علم میں رہتا ہے. ایجوکیشن کا نظام ایسا ہے کہ جس نے طالب علم کو طالب نمبر بنا کر رکھ دیا ہے, اور علم کی جگہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں. سیکھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے اگر قبر تک سیکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بات ہم تمام لوگوں کو ماننی چاہیے, تسلیم کرنی چاہیے, انکلوڈنگ می, کہ بہت کچھ نہیں آتا ہے, بہت کچھ, اور آپ سب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جو آتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیگلیجیبل ہے. تو بہت کچھ نہیں آتا ہے, یہ ماننا بہت ضروری ہے. جب تک یہ مانیں گے نہیں آپ, تب تک آپ سیکھ نہیں پائیں گے. کیونکہ جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بہت کچھ آتا ہے مجھے, میں سب کچھ جانتا ہوں, I know each and everything. تو اس ذہن کے ساتھ پھر آپ سیکھ نہیں پائیں. تو ایک ذہن میں ہمیشہ ایک بات یہ ہونی چاہیے. اور ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کسی کے بھی ذریعہ ہو, استاد بھی سیکھتے ہیں اور طالب علم کا تو کام ہی سیکھنا ہو. دوسری چیز کہ سیکھنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کا ڈر, خوف, کسی بھی طرح کا ڈر. ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کو سیکھنے نہیں دے گا, چاہے وہ کسی بھی طرح, کسی سے بھی, وہ آپ کو سیکھنے نہیں دے گا. پھر وہ آپ کو طالب علم بننے نہیں دے گا. کسی اور مقصد کے لیے آپ چیزیں کریں گے, لیکن سیکھنے کا عمل بہت پیچھے چھوٹ جائے. اور ڈر کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی انسیکیورٹی ہوتی ہے, یعنی کہیں آپ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. کسی بھی چیز کا ڈر, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی, چاہے وہ آپ کو ایگزام میں فیل ہو جانے کا ڈر ہو, یا کسی بھی سبجیکٹ کو نہیں پڑھنے کا یا ٹف لگ رہا ہو آپ کو, اس کا ڈر ہو, یا کسی سر کا ڈر ہو, یا والدین کا ڈر ہو, کسی بھی طرح کا ہو. تو ڈر اگر ہے آپ کے اندر تو آپ سیکھ نہیں پائے. یا کوئی بھی کام, کوئی بھی انسان, کوئی بھی فرد, کوئی بھی کام 100% طور پر اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ وہ تب تک نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ ڈر کے ماحول سے باہر نہیں, جب تک وہ خود کو سیف نہیں محسوس کرے. تو ڈر اگر کسی بھی طرح کا آپ کے اندر ہے, کسی بھی طرح کا, فیوچر کا, مستقبل کا, رزق کا, روزی کا, جان کا, مال کا, کسی بھی طرح کا, تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ ڈر پھر آپ کو جینے نہیں دے گا. وہ ڈر ہر روز ہر پل آپ کی جان لیتا ہے. تو سیکھنے کا عمل بہت پیچھے چھوٹ جائے. یا کسی دوسرے بچے کا ڈر کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے, یا اس بات کا ڈر کہ اس کا کسی کمپٹیشن میں ہو جائے گا, میرا نہیں ہو پائے گا. اس طرح کا ڈر اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو آپ کو نکالنا بہت ضروری ہے.
फितरतन नेचुरल कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि डर से आप बाहर निकलें, तभी आप सीखने के अमल में हिस्सा ले पाए। एक चीज ये, दो चीज। तीसरी चीज ये है कि आप के अंदर तकरीम इंसानियत होनी चाहिए। हर एक इंसान की इज्जत करना आपका, आप ये कह लीजिए कि आपके रवैये में शामिल है। इंसान की इज्जत सिर्फ इस बुनियाद पर की जाएगी कि वो इंसान है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज उसके अंदर ऐड ऑन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी जबान को बोलता हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो। वो इंसान है तो उसके कुछ इंसानी अक़दार हैं, कुछ वैल्यूज हैं, वो हमको देना है, हर हाल में देना है। तो जाहिर सी बात, इंसान की आप बात करें तो उसमें गलती है और क्योंकि ये जब तक आप बेहतर इंसान बनने की राह पर नहीं रहेंगे तो कभी भी आप एक बेहतर मजहबी आदमी भी नहीं बन सकते। मुसलमान तो बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की चीज है। अगर आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते हैं तो मुसलमान बनना तो बहुत दूर की चीज है। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि आइंदा जब भी हमारा वास्ता किसी भी इंसान से उसके पेशे की बुनियाद पर, उसके काम की बुनियाद पर उसको इज्जत देना ना हो, तभी हम बहुत आसानी के साथ अपने घर में जो मुलाजिम है उनके साथ ही बैठ करके काम कर सकते हैं। कोई कूड़ा साफ करने वाला अगर है तो उसके साथ भी हम बैठ के बिला तकल्लुफ़ खा सकते हैं। किसी गरीब के घर में भी हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो ये एक तीसरी चीज थी जिसका हमको ख्याल रखना है। आपका सर्कल है, आप जहां भी जाएंगे वहां एक नया सर्कल बनेगा, एक नए दोस्तों से आप मिलेंगे, जुड़ेंगे। उन दोस्तों के सर्कल में आपको दो बातों का ख्याल जरूर रखना है। एक तो ये है कि आप के सर्कल में कम से कम एक बंदा या दो बंदा वो जरूर हो जिसकी सलाहियत आपसे ज्यादा, जिसकी सलाहियत आपसे ज्यादा, ये जरूर होना चाहिए। आप कोशिश करें कि उनको अपने सर्कल माहौल में हम शामिल करें। दूसरा, उसमें कई लोग या दो लोग या तीन लोग वो ऐसे जरूर हो जिनकी माली हालत आपसे सस्ता, अगर आपकी माली हालत, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उससे अच्छी हो, मतलब आपसे ज्यादा जानने वाला हो और आपसे कम पैसे वाला हो सकता। अगर ये नहीं है तो आप सर्कल चेंज करिए या बनाइए, वरना पूरी जिंदगी आपकी ऐसी भागम भाग में जाएगी कि पूरी जिंदगी कॉम्प्लेक्स जिएंगे और पूरी जिंदगी कुछ हाथ नहीं आने वाला। और किसी एक शख्स के अंदर ये दोनों चीजें मिल गई अगर आपको कि वो सलाहियत में आपसे ज्यादा हो और मुआशी तौर पे आपसे कम हो, फाइनेंशियली आपसे वीक हो, तो उसको तो फिर जिंदगी में कभी मत छोड़ो। ये आपको सुकून, कामयाबी, ये तमाम चीजें सिखा सकती। तो एक तो ये चीज। तीसरी चीज, आखिर की चीज जो है, आखिरी बात जो ये है कि वो वालिदैन और उस्ताद। देखिए, दुनिया में दो ही हस्तियां ऐसी हैं जिसको आपसे अगर मोहब्बत भी है और अगर उनकी सख्ती भी है तो वो बेगर्जाना है, बेलौस है। बाकी जितने भी रिश्ते आपको मिलेंगे वो कहीं न कहीं से कोई ना कोई मकसद आपके पीछे उनका होगा, उनकी मोहब्बत का या उनके करीब आने का। लेकिन वालिदैन और उस्ताद, ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी खुशी में भले ही दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो भी उतने ही खुश होंगे, शायद ज्यादा खुश होंगे जितना आपकी खुशी की जानकारी उनको मिली या आप कामयाबी कह रहे हैं, कुछ भी कह। और वो वही दो लोग होंगे जो आप गम में होंगे या आप नाकाम होंगे दुनिया की नजर में, तो वो गमज़दा होंगे, अफसुर्दा होंगे, मगमूम होंगे। तो इन दो रिश्तों का एहतराम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
वालिदैन के हुकूक तो आपको पता ही है कि उफ तक नहीं कहना है। इनकी वो बातें जो आपको बुरी लग रही हो, बुरी हो, उस पर भी उसमें भी कोई ना कोई ऐसी बेगज़ाना मोहब्बत होगी जो शामिल होगी। कभी यहीं पे आपको कभी पिटाई लगी होगी, कभी कभी ह्यूमिलिएट भी किया गया होगा, कभी कभी कुछ ऐसी बातें कही गई होंगी जब आप सुनेंगे तो सोचेंगे तो यार ऐसी बात सर ने कैसे कही। लेकिन वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि स्कूल में आपको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए ताकि जब आप बाहर जाएं, जिस समाज में आप जा रहे हैं, जिस माशरे में आप जा रहे हैं, वहाँ हर तरह के लोग हैं। वहाँ आपको रास्ते में धक्के भी मिलेंगे, वहाँ बेइज्जती भी मिलेगी, वहाँ कोई हाथ भी उठा लेगा आपके, जिसको आपकी कदर नहीं होगी। तो अगर ये चीजें आपको यहाँ नहीं सिखाई जाएंगी तो फिर वहां पे आप फेस नहीं कर पाइए, आप टूट जाइएगा। इसलिए वो बच्चा जो ऐसे माहौल में रहता है, लोग कहते हैं पीटना नहीं है और वो नहीं करना है, डांटना नहीं है, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन जब आप जिस समाज में आप जा रहे हैं ना, वहाँ डांटने वाले लोग भी हैं, वहाँ ह्यूमिलिएट करने वाले भी हैं, वहाँ लेग पुलिंग करने वाले लोग भी हैं। तो वहाँ वो बच्चा कैसे सर्वाइव करे? या तो आप दुनिया ऐसी बना दीजिए कि तमाम लोग तमाम चीजों का ख्याल रखें, या फिर बच्चों को वो सिखा दीजिए कि बाहर जाके इन चीजों को वो इग्नोर करना सीख जाए, नजरअंदाज करना सीख जाए, माफ करना सीख जाए, बदले की भावना में जिंदगी ना गुजार दे। तो उसकी वजह से भी यहाँ बहुत सी चीजें कभी कभी आपको उस तरह से कही जाती हैं जो बाहर ह्यूमिलिएट टाइप को मजाक में ही चीजें कह दी जाती हैं। तो उनका, उस्ताद का और वालिदैन का, इनका एहतराम जिंदगी में हमेशा कीजिएगा। इनकी वो दुआएं होती हैं जो बिल्कुल खालिस होती हैं, प्योर होती हैं, जिसमें कोई मिलावट किसी गर्ज की नहीं होती। तो ये चंद बातें थी, बाकी बहुत सी बातें चेयरमैन सर ने आप तमाम लोगों की गुज़ार की हैं। और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, और आखिर बात कि हम लोग हमेशा, आप रुखसत हो गए हैं लेकिन हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई मसला, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हम लोगों को सर से मुलाकात करनी चाहिए या दूसरे किसी उस्ताद से मिलना चाहिए, तो बेझिझक आप आ सकते हैं, आप हम लोगों से मिल सकते हैं। और हम लोग खुद भी ये फिक्रमंद रहते हैं कि कौन कहाँ गया, किस तरह से पढ़ रहा है। और जहाँ आप जा रहे हैं, देखिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ वालिदैन के नाम को भी लेके जा रहे हैं और स्कूल के उस्ताद के नाम को भी लेके जा रहे हैं। तो इस बात का आपको ख्याल भी रखना है कि इज्जत का मतलब ये भी है कि माँ बाप के नाम को कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, या उस्ताद को कहीं शर्मिंदगी आपकी वजह से नहीं उठानी पड़े। इससे पहले पेश में एक बच्चा कहीं गया था और उसको कुछ ऐसी हरकत की थी कि शर्मिंदा होना पड़ा। अब वो जो भी वजह, तो हमारी कोशिश ये हो कि एटलीस्ट हमारी वजह से, हर बाप, हर बच्चा ही चाहता है कि हमारी वजह से बाप को कोई तकलीफ ना हो। तो हर तालिब इल्म को ये भी फिक्र होनी चाहिए कि हमारे किसी अमल की वजह से हमारे उस्ताद को कोई तकलीफ ना हो। तो इन्हीं चंद बातों के साथ बाकी वेल विशेस हैं, आप लोग जहाँ जाएं खुश रहें, हर वक्त हर लम्हे को कामयाब बनाना सीखें, खुश रहना सीखें, शुक्रगुजार बन के रहें। दोनों जहानों में अल्लाह ताला कामयाब